Welcome to Add-on. So, the question is, Fourier coefficient Bn in the Fourier series of fx is equal to x sin x in an interval 0 to 2 pi and f of x plus 2 pi is equal to fx is. That means we need to find Bn in Fourier series of fx, जिसके लिए हमें याद होना चाहिए Fourier series expansion of a function fx. That is Fourier series expansion of fx in an interval 0 to 2 pi, which is f of x is equal to a naught upon 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin nx, where a naught is equal to 1 upon pi integration 0 to 2 pi f of x dx, an is equal to 1 upon pi integration 0 to 2 pi f of x cos nx dx, and bn is equal to 1 upon pi integration 0 to 2 pi f of x sin nx dx, where f of x is x sin nx and हमें सिर्फ bn ही फाइंड आउट करना है. सो ये हो जाएगा bn is equal to 1 upon pi integration 0 to 2 pi x sin x sin nx dx. Now, to solve this integration, हमें पता होनी चाहिए trigonometric property, which is sin A sin B is equal to 1 upon 2 cos A minus B minus cos A plus B. So, using the property we get 1 upon pi integration 0 to 2 pi x cos 1 minus nx minus cos 1 plus nx dx. Now to solve this हमें यू पता होना चाहिए generalized form of integration by parts. So we are gonna use this integration by parts to solve this integral, which is integration of u dot v dx is equal to u multiply v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 minus u triple dash v4 and so on, where v1 is equal to integration of v with dx, v2 is integration of v1 with dx and so on. So हमारे पास क्या होगा, u is equal to x and v is equal to cos 1 minus nx minus cos 1 plus nx. Now हमें चाहिए u dash is equal to 1, u double dash is equal to 0. सो हमें सिर्फ u डैश तक वैल्यू चाहिए. दैट मीन्स हमें सिर्फ v1 और v2 चाहिए. सो v1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 1 माइनस nx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 1 प्लस nx dx, जो हो जाएगा sin 1 माइनस nx डिवाइडेड बाय 1 माइनस n माइनस sin 1 प्लस nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस n. दिस इज इक्वल टू v1. अब हमें चाहिए v2, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ v1 विद dx. सो इंटीग्रेशन ऑफ sin 1 माइनस nx अपॉन 1 माइनस n dx माइनस sin 1 plus nx divided by 1 plus n, which is equal to minus cos 1 minus nx divided by 1 minus n का whole square minus में minus cos 1 plus n divided by nx divided by 1 plus n का whole square, which is equal to minus cos 1 minus nx divided by 1 minus n का whole square plus cos 1 plus nx divided by 1 plus n का whole square. Now हमारे पास u dash v1 and v2 आ गया है. So using this हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u dot v था u v1
माइनस यू डैश v2 प्लस यू डबल डैश v3 एंड सो ऑन। हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x cos 1 माइनस nx माइनस cos 1 प्लस nx dx विच इज इक्वल टू u था x, v1 था हमारे पास sin 1 माइनस nx अपॉन 1 माइनस n माइनस sin 1 प्लस nx अपॉन 1 माइनस n। सो ये हो जाएगा माइनस u डैश इज 1 एंड v2 इज माइनस cos 1 माइनस nx डिवाइडेड बाय 1 माइनस n का होल स्क्वायर प्लस cos 1 प्लस nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस n का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा x sin 1 माइनस nx डिवाइडेड बाय 1 माइनस n माइनस sin 1 प्लस nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, टेक साइन कॉमन, प्लस cos 1 माइनस nx डिवाइडेड बाय 1 माइनस n का होल स्क्वायर माइनस cos, सिंस हमने माइनस का साइन कॉमन लिया है सो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस cos 1 प्लस n x डिवाइडेड बाय 1 प्लस n का होल स्क्वायर। नाउ हमें इंटीग्रेशन चाहिए था 0 टू 2 पाई के लिए, सो हम लिमिट पुट करेंगे 0 टू 2 पाई। सो ये हो जाएगा 2 पाई साइन 1 माइनस n 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस n माइनस साइन 1 प्लस n 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस n में प्लस cos 1 माइनस n 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस n का होल स्क्वायर माइनस cos 1 प्लस n 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस n का होल स्क्वायर। नाउ पुट द लिमिट 0 विच इज इक्वल टू माइनस x की मल्टीप्लाई होगी पूरी साइन टर्म से तो ये हो जाएगा 0 प्लस cos 0 अपॉन 1 माइनस n का होल स्क्वायर माइनस cos 0 अपॉन 1 प्लस n का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2 पाई साइन ऑफ 2 पाई इज 0, दिस इज ऑल्सो 0 प्लस cos 1 माइनस n 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस n का होल स्क्वायर माइनस cos 1 प्लस n 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस n का होल स्क्वायर प्लस, सिंस यहाँ पे माइनस है सो ये होगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस n का होल स्क्वायर। सिंस वी नो cos 0 is equal to 1, sin n pi is equal to 0. So using this हमारी sin terms 0 हो गई है and cos 0 is equal to 1. So finally हमारे पास आएगा cos 1 minus n 2 pi divided by 1 minus n का whole square minus cos 1 plus n 2 pi divided by 1 plus n का whole square plus minus minus 0 since ये सेम टर्म्स ही हैं माइनस 1 प्लस n का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको ये सॉल्व ना करके हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं सो डैट आगे चल के कैंसिल हो, यहाँ कैंसिल नहीं होगा। दिस इंटीग्रल इज़ फॉर बी एन एंड ये टर्म आगे हमारी कैंसिल होगी जब हम कॉस के लिए सॉल्व करेंगे। सिंस कॉस ऑफ n पाई क्या होता है -1 रेज टू द पावर n, सो कॉस 2 1 माइनस n पाई क्या होगा -1 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -2n, दैट इज कॉस 2 -2n होता है -1 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -1 रेज टू द पावर -2n। सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन -1 रेज टू द पावर 2n। अब -1 रेज टू द पावर इवन नंबर है सो ये क्या हो जाएगा
minus 1 raised to the power 2, that is minus 1 raised to the power 2 is multiply 1, that is 1 multiply 1, so it is 1. Similarly, cos 2 1 plus n pi क्या होगा, माइनस 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2n, जिसको हम सेपरेट कर देंगे, माइनस 1 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 रेज टू द पावर 2n, दोनों ही पावर इवन है तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1. सो यूजिंग दिस हमारे पास आ जाएगा bn इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस n का होल स्क्वायर. अब ये सब कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास क्या आएगा, bn 0 एंड द आंसर इज 0. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Hence option B is correct.